अच्छे लोग लेफ्ट करते हो मीटिंग, फिर अगेन ज्वाइन करते हो। और कोई बचा है? अभी नहीं सर, थोड़े थोड़े लोग बाकी है सर। लास्ट 1 मिनट आई थिंक। सर नॉर्मली 80 क्रॉस होता है, अभी 78 है। Okay, guys, right now we will start. In the previous lectures, what we have discussed. Yes, guys. Torsional equation, Yes. Yes. बोलिए. damping Some of coefficient, damping coefficients. Okay, some of the important terms of basic terminology हम लोगों ने देखे थे. क्या क्या देखे थे? Simple harmonic motions. damping, resonance, Yes. Degree Degree of of freedom. freedom. हाँ. Resonance. stiffness of linear spring, हाँ. Stiffness of the linear spring. torsional equation, Parts of vibrating system. हाँ. Parts of vibrating system. Correct. उसके अंदर जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो कैसे निकालते हैं वो देखा था. और क्या देखे थे? ऐसे torsional stiffness, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, वो तो हो गया, उसके प्रीवियस लेक्चर का है. torsional stiffness, टॉर्शनल स्टिफनेस. करेक्ट. वो कहाँ से आता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो हम लोगों ने डिराइव किया था. और बस इतना ही था. Damping coefficient. डैम्पिंग कांस्टेंट और डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स. ओके. So guys, so today's topic, which is very important concept, right now we have discussed which of the different steps involved in vibration analysis, or different method for analyze the problem of vibration. How will you analyze the vibration problem? Anybody from you? जो मशीन के अंदर, जो इंजन के अंदर जो वियर एंड टेयर आउट आता है, उसको कम करने के लिए हम लोग वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं. और जो फेल्योर्स आता है इंजन के अंदर या वेरियस मशीनरी के अंदर, वो फेल्योर्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग वाइब्रेशन एनालिसिस मेथड लगाते हैं. ओके. अगर if you want to increase the performance of the engine, if you want to increase the efficiency of the machine or engine, if you want to increase the effectiveness of the engine, for that we need to analyze with the help of some different methods of vibration analysis of any vibrating body. अब इसके 3 डिफरेंट मेथड्स है जो वाइब्रेशन एनालाइज करते हैं. तो विच ऑफ द 3 डिफरेंट मेथड्स, ये 5 नंबर के लिए आपको एग्जाम में पूछते हैं.
equilibrium method or D'Alembert's principle method, or you may call Newton's method. Second method है energy method. Third है Rayleigh method. Are you audible, guys? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Are you visible? Yes, sir. Are you visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब फर्स्ट ईयर के अंदर आप मैकेनिक्स में देखे होंगे इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम मेथड क्या था, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. देखे थे आप? हाँ सर. यस. तो अभी वही प्रिंसिपल यहाँ पे है, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल. ये होता है आपका समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्सेस and external forces that must be equals to 0. That is a D'Alembert's principle. अगर ये टॉर्क के फॉर्म में होगा तो समेशन ऑफ इनर्शिया टॉर्क एंड ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. तो यह होता है आपका D'Alembert's प्रिंसिपल. अब ये क्या काम करता है, ये इसका डेरिवेशन फॉर्मूले क्या है वो हम लोग देखते हैं. ठीक है. अब देखिए, अगर if you want to find out the natural frequency of any vibrating body, for that you have to analyze. How will you analyze? With the help of some different techniques or method which is required for finding the equation of motions, general equation of motions of any vibrating body. And if you find the general equation of motions, from that we can easily determine the natural frequency of any vibrating body. Are you getting the point? अब inertia force according to Newton's second law, inertia force क्या होता है? Mass into accelerations. Okay. अब inertia force की जो direction होगी, which is opposite direction to that of accelerations. ठीक है. एक्सेलरेशंस के जो भी बॉडी के जो मोशंस है उसके अगेंस्ट में आपका इनर्शिया फोर्स लगेगा. ठीक है. अब ये जो प्रिंसिपल है काफी इंपॉर्टेंट है. हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं, वहां से हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. ठीक है. अब प्रैक्टिकली ठीक है हम लोग देखते हैं अभी आगे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो लेट अस कंसीडर the spring mass system. Have a look, guys. क्या दिखाई दे रहा है आपके सामने? एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को एक मास अटैच किया है. तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? एक स्प्रिंग को स्प्रिंग को एक्सपांड होगा सर. हाँ, मास लगा दिया तो वो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा. किसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगा? वो जो मास का जो सेल्फ वेट है उसके वजह से जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग होगा. अब वो स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग कितना है? डेल्टा. अब लुक, देखिए अब ये जो मास ऑफ बॉडी है उसका सेल्फ वेट कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शंस mg. ओके. अब ये जो इसके अगेंस्ट में लगेगा जो फोर्स है, कौन सा फोर्स लगेगा हमारा? स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग फोर्स k इनटू डेल्टा. डेल्टा क्या है? स्टैटिक डिफ्लेक्शंस ऑफ द स्प्रिंग बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ वेट ऑफ दैट मास ऑफ दैट बॉडी. ओके. अब क्या होगा? ये जो मास ऑफ बॉडी है इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स देता हूं x इतना डिस्टेंस है, तो व्हाट विल हैपन? वो थोड़ा नीचे चले जाएगा कि आपका सिस्टम. तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा आपका? ये तो इसका मेन पोजीशन से ये डेल्टा स्टैटिक डिफ्लेक्शन की वजह से और प्लस जो डिफ्लेक्शन नीचे जाएगा बॉडी तो उसका कितना है? x. तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा गाइस? x प्लस डेल्टा. ठीक है. अब देखिए अगर ये सिस्टम का एफबीडी बनाना है तो क्या होगा? देखिए अब ये जो बॉडी है, मास ऑफ बॉडी है,
इसको तुम लोग मूव कर रहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, सो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, x डॉट x डबल डॉट, इसके अगेंस्ट में लगने वाले फोर्सेस कौन से है, व्हिच ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस, दैट इज, एक आएगा आपका स्प्रिंग फोर्स। सो स्प्रिंग फोर्स कितना है, स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन कितना है हमारा, x प्लस डेल्टा। आर यू लिसनिंग गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस, सो टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा, x प्लस डेल्टा, सो स्टिफनेस इनटू टोटल डिफ्लेक्शन, दैट इज व्हाट, स्प्रिंग फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन टू द, यस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के। अब ये सेल्फ वेट, ये जो मास है उसका सेल्फ वेट जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा, और ठीक है, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एक फोर्स, कौन सा है, इनर्शिया फोर्सेस। अब हमें करना क्या है, इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल लगाना है या डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाना है, ठीक है। अब एक बात तो यहाँ पे ये है कि तो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, ये जो फोर्स है आपका mg इज इक्वल टू k डेल्टा, ये फोर्स आपका यहाँ पे बैलेंस हो गया, Yes. ये एपीडी में देखो आप, ठीक है। सो बोथ द फोर्स आर बैलेंस बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो Yes, sir. k डेल्टा इज इक्वल टू mg, ये फोर्स अब बैलेंस हो गया, मतलब जीरो हो गया क्या? अब देखिए आगे चलिए, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्सेस, कितना इनर्शिया फोर्स, mh डबल डॉट गाइस, और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हमारे पास, ये स्प्रिंग फोर्स के इन ब्रैकेट टोटल डिफ्लेक्शन x प्लस डेल्टा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में Minus सेल्फ वेट माइनस mg इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का इक्वेशंस बन गया। बस अभी थ्रूआउट ये इक्वेशंस को आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए आगे क्या होता है, व्हाट विल यू गेट गाइस, सो mh डबल डॉट प्लस kx प्लस k डेल्टा माइनस mg इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए mg इज इक्वल टू k डेल्टा, ये हमारे पास है, ठीक है, बस वो रख दिया हम लोगों ने, तो प्लस mg माइनस mg के कैंसिल, देन व्हाट विल यू गेट, mh डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. देखिए यस, मूव फॉरवर्ड, सो h डबल डॉट प्लस k अपॉन m इनटू x इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, थ्रूआउट दिस इक्वेशन को m से डिवाइड कर दिया, सो डिवाइडेड, यू हैव टू डिवाइड by m mass, okay, so you will get these equations. Up now you have to compare the fundamental equation of simple harmonic motions, क्या है, h double dot plus omega n square x is equals to 0, yes guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ो। अब गाइस ये हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, इसको ये दो इक्वेशन कंपेयर किया तो h डबल डॉट सेम है, ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k by m, and from that you will get the final natural frequency of vibrating system, क्या आ जाएगा, ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, then ओमेगा n is equal to under root k by m radian per second, yes। चलिए, सो अब ये फ्रीक्वेंसी आपको रेडियन पर सेकेंड में मिल गई। अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर निकालना है या सीपीएस के अंदर निकालना है, सीपीएस बोले तो साइकिल पर यूनिट, साइकिल पर सेकेंड, यस सीपीएस। सो अब एफएन इज इक्वल टू 1/2 पाई इनटू ओमेगा एन, ओमेगा एन कितना है, अंडर रूट के बाय। तो ये फ्रीक्वेंसी आपका, ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो वो आपको किस में मिलेगी, सीपीएस के अंदर, साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से उसका जनरल इक्वेशन हम लोग डिटरमाइन करते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस तरह से डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हिच मेथड, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, और यू मे कॉल न्यूटन्स मेथड व्हिच इज इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, you try to learn and then try to understand what is going on. That is very important. So shall we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. So अभी काफी important concept again, energy method. We have to derive the natural frequency of any vibrating system, or you have to
develop the general equation of motions. How will you develop? How to develop the equation of motions, and from that you will be easily find out the natural frequency of any vibrating body. So energy principle. What energy principle? The law of conservation of energy principle. क्या है? Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देखिए, मान लो एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका. फॉलोइंग डायग्राम हम लोग देखेंगे. देखिए, सिंपल एक स्प्रिंग है, उसके नीचे एक मास लगाया है, ठीक है? ये मास ऑफ दैट बॉडी का क्या है? मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है. Then what will happen if you disturb this system? ये जो स्प्रिंग और उसके नीचे एक मास लगाया है, ये दिस इज द वर्टिकल इन पोजीशन, ठीक है? वर्टिकल अरेंजमेंट है. अगर अब ये मास ऑफ दैट बॉडी को अगर तुम x इतना डिस्टेंस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करते हैं, मूव करते हैं, तो व्हाट विल हैपन गाइस? आफ्टर डिस्टर्बिंग द सिस्टम, देन व्हाट विल हैपन? Which of the different forces, कौन सा फोर्सेस लगेगा यहाँ पे? अब मान लो यहाँ पे ये जो बॉडी है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे? उस स्टेबल कंडीशन में तो पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा, ठीक है? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, इट इज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर. यहाँ पे मेन पोजीशन से ये जो आपकी मूविंग बॉडी है, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा. जब आपका ये सिस्टम को आप डिस्टर्ब करोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी. सो काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy principle, it is plays an important role here. There is an exchange of energy takes place here. This diagram shows that mean or equilibrium positions of that spring or mass system. Okay, when you disturb the system, this is the displaced positions. Okay, so you will get the forces. कौन से forces लगेंगे? जब आप लोग displacement, velocity और acceleration से downward direction में होगा, तो उसके against में जो फोर्सेस लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा. अभी यहाँ पे ये अनडैम्ड सिस्टम है, हम लोग मॉड्यूल देख रहे हैं, अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डैम्पर का कोई रोल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स नहीं आएगा, बिकॉज इट इज द एब्सेंस ऑफ डैम्पर. ये अनडैम्ड वाइब्रेशन सिस्टम है, ठीक है? यस. अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम में ये जो वर्टिकल जो ऊपर से लेके नीचे से, ये तो तेजी से जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो ऑसिलेशन होगा, उसको रोकने के लिए हम लोग डैम्पर लगाएंगे. दैट इज व्हाट, वो क्या हो जाएगा फिर? डैम्प फ्री वाइब्रेशन हो जाएगा, ठीक है? ये अनडैम्प सिस्टम है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते. अब गाइस ये सिस्टम है स्प्रिंग मास सिस्टम, इसको तुम लोगों ने डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेसमेंट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन उसका आएगा x डॉट x डबल डॉट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन. इसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टिव और क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्टिव फोर्सेस जो लगेगा, वो है हमारा स्प्रिंग फोर्स, जो कितना होगा? स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शंस. ओके, इतना स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शंस, k इनटू x. ओके, और क्या लगेगा? इनर्शिया फोर्स लगेगा, जो कितना होता है? इनर्शिया फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, mx डबल डॉट, जो अगेंस्ट में लगेगा, ठीक है? अब देखिए, इसका हम लोग एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और उसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. किसके साथ कंपेयर करेंगे? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ में कंपेयर करेंगे. एंड फ्रॉम दैट यू विल बी डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड. ओके, अब देखिए, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, यू मे कॉल पोटेंशियल एनर्जी, जो होता है आपका, जो 1/2 kx स्क्वायर है, वो कहां से आएगा? तो यहां से आएगा. वो मान लो ये फोर्स इनटू एरिया अंडर दिस स्क्वायर, फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन डायग्राम, ठीक है? सो 1/2 इनटू फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन. अब फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स, स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन. तो कितना हो जाएगा? x इनटू x स्क्वायर. सो फ्रॉम दैट यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा आपका 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए,
अब देखिए एनर्जी मेथड क्या होता है, एनर्जी मेथड या एनर्जी प्रिंसिपल जो है, इट इज नथिंग बट it is a algebraic sum of kinetic energy and potential energy that must be constant, that must be what, constant. अब देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 m mass h dot square, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, ड्यू टू द मास ऑफ दैट मूविंग बॉडी। देखिए फिगर में देखिए, देखिए सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कांस्टेंट, ओके। अगर अगर ये इसका ये टोटल एनर्जी का तुम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो मास ऑफ दैट मूविंग बॉडी है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, 1/2। जनरली क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। v के जगह में हम लोग वाइब्रेशन सिस्टम में क्या लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी लेते हैं, जो कितना है h डॉट। सो 1/2 m मास h डॉट स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी है जो लीनियर स्प्रिंग है उसका कितना है 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। बस दोनों का क्या कर देना है, हमें एडिशन कर देना है। तो एडिशन करने के बाद एनर्जी मेथड क्या बोलता है, टेकिंग यू हैव टू टेक द डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने डाला 1/2 m मास h डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का डाला है स्प्रिंग का कितना है 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल, यहां से क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे h डॉट स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन हाउ विल यू फाइंड, you have to think, anybody from you, yes। देखिए बेटा h डॉट स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 इंटू h डॉट, इंटू h डॉट का क्या हो जाएगा h डबल डॉट, बिकॉज h डॉट मतलब क्या है बेटा, लीनियर वेलोसिटी, मतलब क्या dx by dt, dx by dt डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। सो d by dt और dx by dt मतलब क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, मतलब क्या h डबल डॉट, क्या h डबल डॉट, समझ रहे नहीं आप। अब देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू h डॉट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा h डॉट, ठीक है। बिकॉज dx by dt मतलब क्या h डॉट, यहाँ पे x डॉट चाहिए और यहाँ पे भी क्या चाहिए h डॉट चाहिए, ये प्रिंटिंग मिक्स है बुक का, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये 1/2 और 2 गेट कैंसिल, 1/2 2 गेट कैंसिल, ठीक है। और h डॉट को बाहर निकाल दो, यस h डॉट को बाहर निकाल दो, मतलब वो 0 हो जाएगा। देन क्या बचेगा, क्या बचेगा mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको बचेगा। दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स नहीं आएगा बिकॉज ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम है, डैम्पर इज एब्सेंट देयर, ओके। अगर डैम्पिंग फ्री वाइब्रेशन रहेगा तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, एक डैम्पर डैम्पिंग फोर्स ऐड हो जाएगा, जो क्या रहेगा हमारा डैम्पिंग फोर्स कितना होता है ch डॉट। सो mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस we have determined with the help of energy method of basically undamped free vibration of single degree of freedom system, single spring single mass, that is the single degree of freedom system we are looking, okay। अब throughout these equations को you have to divide by m mass, what will you get guys, x double dot plus k by m x is equal to 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन बना इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एक्सेशन, क्या है वो, क्या है x डबल डॉट प्लस ओमेगा n स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x डबल डॉट सेम है, ओमेगा n स्क्वायर का वैल्यू टर्म कितना हो जाएगा k by m, so from that easily you will get the natural frequency, that is our objective, that's why to determine what ओमेगा n is equal to under root of k by m radian per second। अगर ये फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर हमको हर्ट्ज में चाहिए तो कैसे मिलेगी, fn is equals to 1/2 pi अंडर रूट k by m। गाइस समझ गए, आर यू गेटिंग, Yes, sir. अब देखिए दो मेथड हो गए, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से यही कंसेप्ट आप लेके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब लास्ट मेथड है रेले मेथड। सो रेले मेथड क्या होता है? दिस इज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी मेथड। तो रेले मेथड व्हिच इज डेवलप्ड बाय रेले साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल क्या है देखिए, total energy, total kinetic energy, maximum total kinetic energy that must be equals to maximum total potential energy. So that is the Rayleigh method. अब देखिए मैक्सिमम कंडीशन क्या होगा वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह लगेंगे गाइस, हैव अ लुक हियर। तो रेले मेथड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है? 1/2 m मास क्या है? x डॉट स्क्वायर। ओके, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 kx स्क्वायर। अब देखिए ये रिलेशन है हमारे पास, क्या रिलेशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू कैपिटल X, या यहाँ पे आप कैपिटल A भी ले सकते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? ओमेगा एन टी या ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ो। अब व्हेन यू टेक दिस इक्वेशन को आप लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? x का डिफरेंशिएशन dx by dt मतलब क्या? h डॉट लीनियर वेलोसिटी। अब देखिए x sin ओमेगा एन टी, साइन का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? डिफरेंशिएटिंग साइन का क्या हो जाएगा? cos ओमेगा एन टी। गाइस यस सर। यस, देखिए तो साइन का क्या होगा? cos ओमेगा एन टी। अब देखिए ओमेगा एन टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा एन, राइट। सो ओमेगा एन एक्स cos ओमेगा एन टी आ गया। और ये इक्वेशन का फर्दर यू हैव टू टेक द डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट विल यू गेट? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशंस, लीनियर एक्सेलरेशंस। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर मतलब क्या? h डबल डॉट। अगर फर्दर लेते हैं तो इसका, क्योंकि हम लोगों को h डबल डॉट की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 m मास h डॉट स्क्वायर। सो h डॉट उतना ही लगेगा। अब देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कम रहेगी, कब रहेगी? जब आपका cos 0 की वैल्यू कितना होगी? cos 0 की वैल्यू कितना होगी? 1। जब आपकी cos 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ठीक है, अगर वैल्यू आप 0 डालते तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तब आपका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम कंडीशन के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? ये cos 0 तो 1 होगा, तो क्या बचेगा? ओमेगा एन एक्स या a, ठीक है। अब देखिए ये हमें x डॉट का टर्म चाहिए, तो x डॉट की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? ओमेगा एन एक्स ये रख देंगे। देखिए x डॉट मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह पे हम लोगों ने ये टर्म रखा ओमेगा एन एक्स, तो क्या स्क्वायर बन जाएगा? ओमेगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म इधर आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर। अब x के जगह पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका कब रहेगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका कब रहेगा? जब आपका साइन 0 की वैल्यू कितना होगी? या साइन 90 कितना होगा? 1। साइन 90 की वैल्यू जब 1 होगी तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। तो x मैक्सिमम की जगह पे आप कौन सा टर्म लेंगे? कैपिटल X। तो x के जगह पे मैं ले रहा हूं कैपिटल X स्क्वायर। बस इसको क्या कर लेना है आपको? इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएंगे सो 1/2 m मास ओमेगा एन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। बस ये सेम इक्वेशंस को यू हैव टू मॉडिफाई। देखिए 1/2 गेट कैंसिल, क्या बचेगा? कुछ बचेगा? I think that x square get also get cancelled. From that you will get the natural frequency omega n square is equals to kym. Omega n, therefore omega n is equals to under root kym radian per second में इतना आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गया। अगर इसको हर्ट्ज में लेना है तो क्या मिल जाएगा? 1/2 पाई ओमेगा n या अंडर रूट kym, ये हर्ट्ज के अंदर fn आ गया, ठीक है। तो गाइस यही था डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी by 3 methods, D'Alembert's principle और एनर्जी मेथड और रेले मेथड, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको
ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आर यू गेटिंग यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस। आपको मैं अटेंडेंस देता हूं। अब एक एक घंटा, अब एक लेक्चर लगेगा जिसमें थ्योरेटिकल टॉपिक है, वहां पे हम लोग वो कवर करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है ऑल द सर। न्यूमेरिकल यू हैव टू सॉल्व बाय एनर्जी मेथड, which is very important। जो आपको 100% न्यूमेरिकल आता है, जो होता है एनर्जी मेथड का, आपको 10 नंबर के लिए सॉल्व करना होता है, ठीक है। सर जो आप ये जिससे पढ़ा रहे ये वाली बुक आपने भेजा है क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था ना मैं, और शायद इसने भेजा था अपना, क्या हाँ नाम है, लिंक हाँ हाँ में, ड्राइव में है। हाँ, लिंक जो ड्राइव है ना उसके अंदर है ये। है क्या? हाँ हाँ। हाँ, नहीं होगा तो वो आप अपना एक स्पेशल सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया है, उसमें मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये पीडीएफ भी मैं आपको पर्सनल ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। Is there any queries? Then you directly contact me. Either you will WhatsApp, ठीक है। आप टेक्स्ट मैसेज करो, कॉल करो, ठीक है। You ओके have to सर। learn, you have to understand each and every concept। अटेंडेंस आपको अभी देना है, जस्ट अ मिनट।
देखिए अटेंडेंस लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए। हैव यू गॉट? Yes, sir, we got it. यस यस, फिनिश इट, डू इट। सर परमिशन मांग रहा है। क्या हुआ? सर परमिशन मांग रहा, ओपन नहीं हो रहा। परमिशन मांग रहा है। यू अच्छा। नीड परमिशन ऐसा लिख के आ रहा है। एक मिनट, एक्सेस देना पड़ेगा। सर कौन से ग्रुप पे लिंक डाले हो? ये डॉम के अपने। सर परमिशन मांग रहा है। अच्छा, लेट मी सी। परमिशन मांग रहा है। तौसिक मेरे पास शायद लिंक ग्रुप में ऐड नहीं होना, मेरे को ऐड करना है। आप टिक करो। मैं डॉम के ग्रुप पे नहीं हूँ सर। बेटा आप सर ओपन हुआ सर। आया सर। ओके, डू इट एवरीबॉडी। सर एक बार डॉम के ग्रुप की लिंक शेयर करो ना ऑफिशियल ग्रुप पे। ऑफिशियल ग्रुप पे अरे शेयर किया था ना बेटा। सर मैंने ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, वो हबीब किधर है? हबीब शेयर करो ग्रुप पे। हाँ सर, वेट सर, डालते हैं। सर ग्रुप पे डाला है इसमें। हाँ टाका कोणीतरी टाका। मला फक्त आता गिरनारलाच जायचं आणि अवधूत हो गया सर। हो गया? हो गया सर अटेंडेंस। हाँ हो गया। आप देखिए ग्रुप में चेक करो, आपको पीडीएफ मिला गया फ्रॉम टुडेज क्लास। हाँ सर आया। यस 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 सर। चलो फटाफट ये सर्कुलेट करो और अपने काम पे लग जाओ। सर कोई तो डॉम का ग्रुप का लिंक भेजो ना ग्रुप पे ऑफिशियल पे ज्वाइन करने के लिए। हाँ पाठवून द्या रे, काही कुणाचं बाकी असेल तर ते सर्कुलेट करा, सगळ्यांना ऍड करा तिथे। ये सीआर का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? वो ए डिवीजन सीआर का नाम क्या है? भाविल। सर मैं वो भाविन हूँ। हाँ भाविन ना। हाँ सर। और बी डिवीजन का? ग्रुप में ऐड कर। हाँ हबीब है क्या? बी डिवीजन का क्या नाम है? ये लिंक फॉरवर्ड कर दे उनको। सर ऐड कर देंगे, तुझे नंबर सेंड कर दिया। हाँ ठीक। और जो मैंने आपको एक पीपीटी भी भेजा था थेरी नोट्स का, वो मिली सभी को? यस सर मैंने। हाँ सर मिला। यस, ये नोट्स आप सब संभाल के रखो, आपको सब काम आएंगे जब यूटी होगा या कुछ फाइनल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, या पैंडेमिक पता नहीं अगला महीना चालू होता है या 2 महीना लगता है या 4 महीना लगता है। ठीक है, ऑल द मटेरियल आपको रिलेटेड सब्जेक्ट थोड़ा स्टॉक में रख देना है। ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जो डॉम के ग्रुप पे आप भेजा था ना वापस भेज दो ना सर। क्या ग्रुप का देखो लिंक मैंने अभी सर डाल नहीं ज्वाइन किया है कमेंट लेकिन सेक्शन में अभी मैंने लिंक डाला। हाँ ज्वाइन ज्वाइन किया कर है लो। यस लेकिन तो प्रीवियस भेजा था ना वो फिर से भेजो।
हाँ भेजा ना उसने ने, ऑफिशियल ग्रुप में आया ना। एक दूसरे को शेयर करते चलो नोट्स रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट सिलेबस कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे चैट बॉक्स में भी मैंने लिंक डाला है ग्रुप का, ज्वाइन कर लो जिसको करना हो। हाँ हो गया सर। यस, देखो डॉम का पीपीटी भी आया है, ठीक है। इतना पूरे आप स्टडी करके रखो, ठीक है। आई विल आस्क क्वेश्चंस ईच एंड एवरी। सर आपने थियरी क्वेश्चंस भी दिए क्या? यदि क्वेश्चंस किसके अंदर? सर अभी आपने बोले थे ना थियरी के लिए भी PPT? एक पीडीएफ दी, हाँ ओ पीपीटी ओ दी। ए पीपीटी में दिया, थ्योरेटिकल कुछ डेटा मटेरियल है, अभी एक पीडीएफ दिया, ठीक है। और नहीं अभी अभी कुछ नहीं दिया, ये दो दिया है। ठीक है ठीक है और कुछ रहेगा तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। Okay, you will be exit, guys. यस सर। Yes. Thank you, sir. Yes. थैंक यू सर। Yes. Welcome.